नमो 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 सवसाहुनम् एसो पंचनमुकारो सवपावपनासनो मङ्गलार्णं च सवेसि पठमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याः जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नमो दुर्वारिरागादि वैरिवार निवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताइने अज्ञान
ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। શ્રી પાર્શ્વવલ્લભ ઇન્દ્રધામના પ્રમુખ વીરસેનભાઈ અને નિલેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે આ પાવન પ્રસંગે પોતાનું ઉદ્બોધન આપે. તબગત સંઘના પ્રમુખ बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य देवश्री प्रातः स्मरणीय विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब की जय। ने साहेब अपना માટે શું બોલું? અરે ઘણાને ખ્યાલ પણ નહીં હોય. લગભગ કેટલા સાહેબ 29 વર્ષ થયા? 4 કિલોમીટર હું સામે લેવા ગયો હતો, સાથે અમે આવ્યા. રસ્તામાં વાતો કરવા કાંઈ પરિચય નહીં. હજુ જ્યોતિ પ્રજ્ઞાએ શ્રીજીએ કાઢ્યું. રસ્તામાં વાતો કરતા હતા. આપની સાથે શું વાત કરવી? આપણે ધર્મની છે જે વાત કરી, સાહેબ અહીંયા આરાધના થઈ, આ થઈ છે. એમનો એક જ જવાબ, બહુ સરસ. જે કહું તો બહુ સરસ, બહુ સરસ. અરે સાહેબ તમે કોઈને કંઈ કહેતા નથી, કેમ બોલતા એમ કહેતાય નથી કે આ બરાબર નહીં. વધારે સાહેબ અત્યારે સમય નથી, એટલું બધું બોલવાની ભાવના છે. ખરેખર સાહેબ અહીંયા આપણે પધારી કહું શબ્દો નથી મળતા, બોલી નથી શકતો, પણ એટલો ચોક્કસ સાહેબ કહું સકળ સંઘની હાજરીમાં હવે સાહેબ વિહાર ઓછા કરો સાહેબ. ખરેખર સાહેબ સ્થિરતા કરો, સ્થિરતા કરો. અત્યાર સુધી લોકો પાસે આપ ગયા, હવે લોકો આપની પાસે આવશે. શા માટે આટલા બધા વિહાર કરો છો? ક્યારે ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયો, ક્યાં ને ક્યાંથી અહીંયા આવ્યા, અને કમાલ છે. ઘડીભર વિચાર થઈ આવે આની પાસે કઈ શક્તિ કામ કરે છે. ગુરુદેવની ખરેખર એમને કૃપા એવી મેળવેલી છે. અને વધારે વિશેષ કરતાં એટલું કહ્યું કે સાહેબ આપ અહીંયા સ્થિરતા કરે. કચ્છમાં દરેક જગ્યાએ સેન્ટરમાં આપના સેન્ટર વધારે બોલાઈ જાય મને માફ કરજો, પણ વીર પ્રભુ વિચરતા હતા ને ત્યારે પણ કાંઈ પરિવર્તન નથી લાવી શકતા. તો આપનામાં સાહેબ એટલી બધી શક્તિ છે, એટલી બધી શક્તિ છે. કચ્છમાં પરિવર્તન આવે વગર રહે છે નહીં, એટલી જોરદાર. અને એક મિનિટ ચાતુર્માસની વાત કરી સાહેબ, ખ્યાલ છે ને? ખ્યાલ છે સાહેબ? 29 વર્ષ પહેલાં સાદા સોસાયટીમાં આપનું ચાતુર્માસ સવારના 6 વાગે હું આવ્યો હતો. આપણે 2 જણા જ બેઠા હતા પાટ ઉપર. આપ તે વખતે મુનિ. અરે વાતો મૂકી દે. હા હું તમને કહું, તમને આશ્ચર્ય થશે જાણીને આશ્ચર્ય થશે. મારી પ્રશંસા હું નથી કરતો, પણ આના માટે હું શું કહું.
આ બેસ્ટ ગુરુ, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, મારા ફ્રેન્ડ છે, મારા ભાઈ છે. અરે આના માટે શું વાત કરું? હંમેશા આંબામાં જેમ ફળ આવે ને એમ નીચો નમે અને મીઠાશ વધતી જાય. આનામાં ગજબની મીઠાશ વધી ગઈ, કાંઈ કલ્પના નહીં. સાહેબ આ વાત ધ્યાનમાં રાખજો, આપના માટે કહીએ છીએ સાહેબ, ને અમારા શાસન માટે કહીએ છીએ. શાસનમાં હીરા ઘણા ગાંઠ્યા છે, એનામાં આપ સાહેબ એવા હીરા છો. એટલે સાહેબ આ રાખો. આપ જે અત્યારે વિહાર કરી, સાહેબ વિહારમાં આપનો ટાઈમ કેટલો જાય છે, કેટલો સમય જાય છે, તમે કલ્પના તો કરો સાહેબ. તો એવું સેન્ટર રાખો કચ્છની અંદર, ને કચ્છમાં આપને સંતોષ થાય એવું બધું થશે. સંતોષ થશે આપને કે ના ના ભલે મેં હું ને લોકો તમારી પાસે આપશે. સાહેબ કેટલા પ્રશ્નો છે અમારી પાસે, શું વાત કરું, કેવી રીતે વાત કરું, નથી બોલી શકતો. શાસનદેવની કૃપા છે આપની ઉપર. ફરી ફરીને હું વિનંતી કરું છું કે આપ જેટલું બને તેટલી સ્થિરતા હવે વધારે રાખવાનું કહીએ નથી શકતો. બધો આખા વર્ષનું તમારો ચાર્ટ તૈયાર હોય. શું બોલું, વિચારી દઉં. પ્રથમ તીર્થપતિ દાદા આદિનાથની શીતળ છાયામાં ભુજને આંગણે પંજાબ કેસરી યુગવર આચાર્ય ભગવંત વિજય વલ્લભસુરી સમુદાયના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ, શાંતિદૂત, કલ્યાણક તીર્થ ઉદ્ધારક આચાર્ય ભગવંત વિજય નિત્યાનંદ સોરીજી મહારાજ સાહેબ, આદિ સાધુ ભગવંતો, પધારનાર સમણી ભગવંતો, આપ સૌના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. સમગ્ર ભુજ હિલેડે ચર્યું છે એવા ભુજના સૌ કોઈને મારા પ્રણામ. આજે આપણે આ ગુરુદેવની નિશ્રા મળી છે, પણ શાંતિભાઈ કહ્યું એમ સાહેબ ઓછા વિહાર કરો, પણ સાહેબ સતત કયા કરે છે શાસનની મર્યાદા ન હોય તો હું રાતના પણ વિહાર કરી આખા દેશમાં ફરી દેશમાં ક્રાંતિ લઈ આવું, દેશમાં શાંતિ પ્રવર્તાવું, દેશમાં જીન શાસનનો ડંકો લહેરાવું એવી મારી પ્રબળ ભાવના છે. આપણે કહીએ વિહાર ઓછા કરો, અમે પણ કહીએ છીએ, પણ સાહેબ કે બધાની માંગણીને પણ હજી સંતોષ નથી કરી શકતો. ભુજમાં કહો તો 2 કલાક, માનું કહો આમ કહો તો 4 કલાક, આવી પોઝિશન સાહેબની છે. સાહેબને આપણે વિનંતી કરીએ છીએ, એ લોકો સુધી પહોંચવા માંગે છે, લોકોના હૃદય જીતવા માંગે છે. આપ જોયું હશે આજ માત્ર પ્રવેશમાં એમના મુખનું હાસ્ય, એમના આશીર્વાદ આપ સૌને પ્રાપ્ત થયા. એ આપણી મોટી પુણ્યાઈ કહીએ. પ્રભુને વિનંતી કરીએ કે શાસનના વધુમાં વધુ કામ કરી અમારા જેવા માણસોને પાવન બનાવી પવિત્ર માર્ગે લઈ જાય એવી અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ. અમારામાં હજી ઘણી બધી અધુરાશો છે, એ અધુરાશો આપ જ સમર્થ છો, જીન શાસનના સિતારા છો. આવા સિતારા જો કચ્છને મળશે તો જરૂર કચ્છનું સૌભાગ્ય પુણ્ય ચમકતું રહેશે એવી અમારી લાગણી ને માંગણી છે. માત્ર 2-4 દિવસના પ્રવાસથી કચ્છને સંતોષ થતો નથી. કચ્છના ઘણા ગામડાઓ, ઘણા જીન સંઘો વિચારે છે કે સાહેબ અહીંયા વધારે, સાહેબ કહેશો કે અમને અનુકૂળતા નથી. આમાં પછી આવતીકાલે અત્રે બધું ઉપસ્થિત સૌને પાર્શ્વલ વિંદનામ તરફથી ખૂબ જ આગ્રહભરી વિનંતી છે કે જેમ અહીંયા આવ્યા એમ જ 9:30 જેવી રીતે ભુવન અભયશેખર મહારાજ સાહેબનું પ્રવેશ જાડેજા ફાર્મથી હતું એવી રીતે જ ત્યાંથી સાહેબનું પ્રવેશ છે. 9:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. આવવા જવાની સમસ્ત જૈન સમાજને વ્યવસ્થા છે. આપનું નામ આજે જ નોંધાવી દેશો અને આવતીકાલે સૌ પધારશો એવી ભાવના વિનંતી કરું છું.
આવતીકાલની સવારી નોકારસી જાડેજા ફાર્મ ઉપર છે. ત્યાંથી સાહેબ સાથે આપણે સામૈયામાં પ્રવેશ કરશું. તો ફરી આપને વિનંતી કે આપ સૌ પધારશો, અમારી લાગણી અને માંગણી સ્વીકારશો. અને 5 દિવસનો મહોત્સવની પણ પાર્શ્વધર્મ ટ્રસ્ટ તરફથી આપણે વિનંતી કરું છું. ખાસ જ્યોતિ પ્રજ્ઞાસિંહજી અને જીન પ્રજ્ઞાસિંહજી મહારાજ સાહેબના પારણા 28 જાન્યુઆરીએ છે. તેમાં ખાસ ઉપસ્થિત થઈ અમારા આ ધર્મ કાર્યને શોભાવવા આપને ખૂબ વિનંતી છે. અમારી વિનંતીનો સ્વીકાર કરશો એવી અમારી માંગણી છે. આ કાર્યક્રમ આ સમગ્ર આયોજનનું જીવન પ્રસારણ આશાપુરા ન્યૂઝ ટીવી માધ્યમથી સમગ્ર કચ્છ તેમજ યુટ્યુબના માધ્યમથી સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રકાશ કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ જોવાનો ટાઈમ ન્યૂઝ લાઈવમાં આપ જોઈ શકશો. બધા જ કાર્યક્રમો આપણે શેમાં આવવાનું? આપણી પારસ ચેનલમાં પણ આ બધા જ કાર્યક્રમો જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવશે. હવે આપણે સમયની બહુ પાબંદી છે, વિચારો ઘણા રજૂ કરવાના છે, પણ માત્ર એટલું જ કહીશ કે અમારી બધી જ માંગણીઓ સ્વીકારીને અમારા સમગ્ર કાર્યક્રમમાં પધારશો. જીનાજ્ઞા વિધ કાંઈ કહેવાયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. સાહેબજીના માંગલિક પૂર્ણ થયા બાદ શ્રી માગપટ જૈન સમાજ ભુજ તથા ગુરુભક્તો તરફથી 20 રૂપિયાની પ્રભાવના રાખવામાં આવેલી છે. તેમજ શ્રી ભુજ તપગત જૈન સંઘ તરફથી 10 રૂપિયાની પ્રભાવના રાખવામાં આવેલી છે. તો સર્વેને ખાસ લાભ આપવા વિનંતી. આવતીકાલનું જે જાહેરાત હમણાં પ્રમુખશ્રીએ કરી એ માટેની બસની વ્યવસ્થા આપણે દાદાવાડીથી પણ બસ ઉપડવાની છે. બીજી આપણે અહીંથી દાદાવાડીથી જ બધી બસો સવારે 7:30 વાગ્યે દરેકને ત્યાં ખાસ આવી જવા વિનંતી, જેથી સમયસર આપણે સાહેબજીના પ્રવેશમાં પહોંચી શકીએ. એ માટે નામ લખાવવા માટે આદિનાથ જિનાલયની પેટી ઉપર નામ લખાવી શકાશે, તેમજ દાદાવાડીમાં પણ નામ લખાવી લેવા ખાસ વિનંતી. આવતીકાલ સવારે 7:30 વાગે રાઈટ બસ ઉપડશે બધી. वायर को घुमा दे टाइट. बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय
रामं गुणगारं वल्लभं लोक वल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, एक बात आपने पूछूं कि आप फिल्मों तो जुओ छो कि नहीं जुओ छो? વધારે હિન્દી જુઓ છો કે ગુજરાતી જુઓ છો? હા, પદ્માવતી હિન્દી યા ગુજરાતી? હિન્દી ચાલે છે. એટલા માટે પૂછું છું કે હું પ્રવચન હિન્દીમાં આપવાનું છે, એટલે પૂછ્યું કે તમે હિન્દીમાં જો ફિલ્મો જુઓ છો તો હું હિન્દીમાં પ્રવચન કરું તો આપને બધું સમજમાં પડશે, એટલે હવે લેંગ્વેજ ચેન્જ કરું છું. એક બાર एक ऐसी बात आई कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? हम इस संसार में किसको सबसे बड़ा समझें? जैसे ही ये बात बढ़ते बढ़ते पृथ्वी के कान में पड़ी तो पृथ्वी ने कहा कि सबका आधार तो मैं हूं. धरती जो धारण करे वह धरती सबको धारण करती है. इस संसार में जितना भी जन जीवन है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं, वह किसके ऊपर आधारित हैं? पृथ्वी पर, धरती पर जीते हैं. और यह धरती में भी 3 भाग पानी और 1 भाग पृथ्वी, सब कुछ इस धरती में है. तो उसने विचार किया कि चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ तो मेरे ऊपर है. इसलिए इस संसार में मैं सबसे बड़ी हूं. जैसे ही पृथ्वी के मन में यह बात आई कि संसार में सबसे बड़ी मैं हूं, तो उस समय पृथ्वी से कहा कि अरे धरती, अरे पृथ्वी, तू बड़ी कैसे? अगर तू सबसे बड़ी तो फिर शेषनाग के माथे पर क्यों खड़ी? अपने हिंदू ग्रंथ, हमारी पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं कि यह जो पृथ्वी है यह किसके मस्तक पर खड़ी है? शेषनाग के मस्तक पर खड़ी. अगर पृथ्वी तो सबसे बड़ी तो शेषनाग के मस्तक पर क्यों खड़ी? तब शेषनाग को विचार आता है कि पृथ्वी से बड़ा तो मैं हो गया. और जैसे ही शेषनाग के मन में यह बात आई कि सबसे बड़ा मैं, तो उस समय शेषनाग से पूछा कि अरे शेषनाग, तू सबसे बड़ा कैसे? अगर तू सबसे बड़ा तो फिर शिवजी के गले में क्यों पड़ा? जैसे ही यह बात शिवजी को पता लगी, उनको लगा कि अरे इस संसार में तो सबसे बड़ा मैं हूं. जैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ के मन में यह बात आई कि संसार के अंदर पृथ्वी, पृथ्वी से बड़े शेषनाग और शेषनाग से बड़ा मैं हूं. लेकिन जैसे ही शिवजी के मन में यह बात आई तो उनसे प्रश्न किया गया, अरे शिवजी, संसार में आप बड़े कैसे? शिवजी कहे कि संसार में मैं सबसे बड़ा
तो फिर कैलाश पे जाके क्यों खड़ा? कैलाश कहता है सबसे बड़ा तो मैं हूं। अगर कैलाश तू सबसे बड़ा तो फिर रावण की उंगली पे क्यों खड़ा? रावण ने उसको एक उंगली पे उठा लिया। हिंदू ग्रंथों में जिसको कैलाश पर्वत कहा है, जैन आगमों के अंदर उसको अष्टापद कहा है। जिस अष्टापद पर्वत के ऊपर आदिना दादा का निर्वाण हुआ है। और हमारे जैन आगमों के अंदर भी प्रसंग आता है कि रावण ने उस अष्टापद पर्वत को उठाया था, वही कैलाश। तो रावण विचार करता है क्यों हो यहां तो सारी सत्ता सारी सृष्टि से बड़ा मैं हो गया। तो रावण ने कहा कि मैं सबसे बड़ा। तो रावण से पूछा गया कि अरे रावण, यदि तू सबसे बड़ा तो फिर राम के हाथों से क्यों मरा? तब श्री राम ने विचार किया कि अरे अरे अरे, घूम फिर करके बात मेरे पर आ गई। आखिर श्री राम ने कहा कि संसार में कोई बड़ा नहीं, इस संसार में तो मैं ही बड़ा हूं। श्री राम के मन में यह बात आई कि मैं सबसे बड़ा। तो श्री राम से यह पूछा गया कि अरे राम, यदि आप सबसे बड़े तो फिर हनुमान की छाती में जाकर क्यों पड़े? और जब यह चर्चा चलती गई तो अंत यहां पर आया कि संसार के अंदर में अगर कोई सबसे बड़ा है तो ना उसमें राम, ना उसके अंदर में पृथ्वी, ना उसमें कोई शेष, ना कोई अन्य। इस संसार में तीन लोक में यदि सबसे कोई बड़ा है तो वह है भक्त, और भक्त का हृदय। गुरुदेव भी छोटे, जब श्री राम भी हनुमान के हृदय में बैठे हैं तो हनुमान का हृदय राम से बड़ा है। तो गुरुदेव आपके हृदय में बैठे हैं तो आप भक्तों का हृदय इसलिए बड़ा है। हमारे यहां पर हृदय की भक्ति और भावना की जो शक्ति है वो अमाप है। परमात्मा भी खींचे चले आते हैं तो एकमात्र इस हृदय की भक्ति और शक्ति के कारण। आप मुंह से कितनी भी विनंतियां कर लो, उससे कुछ नहीं बनता। बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों का प्रयोग कर लो, बड़े बड़े शेरो शायरी से आप सभा को बांध लो, गुरु भगवंत को रिझाने का प्रयास करो, लेकिन गुरुदेव किससे खींचे चले आते हैं? आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से, आपके निर्मल शुद्ध हृदय से। आज यदि गुरुदेव दिल्ली से कच्छ पधारे हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण हमारे साध्वी जी भगवंतों की घोर तपश्चर्या और आप सभी मकपट जैन संघ का एक सच्चा और गुरु भक्ति का जो प्रेम है, उल्लास है, आज गुरुदेव को आज भुज तक खींच करके लाया है। वरना हमारी कोई शक्यता नहीं थी। जिस तरह से हमारे विहार चल रहे थे और हमको लगता था कि हमें भुज भी बाईपास होना पड़ेगा, भुज आने की शक्यता हमारी बिल्कुल नहीं थी। हमें बार बार समाचार मिलता, बार बार हमारे वीरचंद भाई, केपी भाई और भी हमारे संघ के आगेवान बार बार गुरुदेव के पास में रास्ते में आए, गुरुदेव आपका कार्यक्रम भुज होकर के बनाना पड़ेगा। हमने कहा चांस ही नहीं। हमारे विहार देखो, अभी हम कहां बैठे हैं, कितना लंबा विहार है, कैसे पहुंचेंगे? और हमें तो केवल एकमात्र अभी तो केवल पार्श्व वल्लभ दिखाई देता है, और वहां तब भी पहुंच जाए इतनी भी गनीमत है। चातुर्मास पूरा हुआ और चातुर्मास पूरा होते ही कार्तिक पूनम के दिन ही हमने विहार किया, जबकि गुरुदेव की निश्रा में उपधान चलता था। उपधान चलते, उपधान में गुरुदेव ने वहां से विहार किया और वहां से गुरुदेव हस्तिनापुर के पास बिनोली गांव पधारे। 3 तारीख को लगभग कार्तिक पूनम थी और 8 तारीख को गुरुदेव बिनोली में पधारे और 8 से लेकर 12 दिसंबर तक गुरुदेव की निश्रा में वहां पर अंजनशिला का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। वहां संपन्न करवा करके और गुरुदेव पुनः दिल्ली पधारे और दिल्ली में आकर के उपधान तब की माला संपन्न करवाई। माला संपन्न करवा करके वहां से 19 तारीख को गुरुदेव ने वहां से विहार किया और 19 तारीख को विहार करके वहां से गुरुदेव अपनी दीक्षा भूमि बड़ौत उत्तर प्रदेश में वहां पधारे, क्योंकि ये गुरुदेव का दीक्षा का 50वां साल था। भले चातुर्मास दिल्ली में हुआ, लेकिन एक दीक्षा भूमि वालों को बड़ा दिल के अंदर में भाव था कि गुरुदेव आपने हमारे नगर के अंदर में 100 परिवार दीक्षा ग्रहण करी,
आप, आपके तीनों भाई, आपके पिताजी, माताजी और पिताजी के अंकल, एक परिवार के 6 सदस्यों ने एक साथ एक ही मुहूर्त में सारे संसार का त्याग करके और संयम को स्वीकार किया, जिन शासन के अंदर में ऐसा अद्भुत विरल उदाहरण शायद अन्य मिलता हो। और उस समय गुरुदेव की उम्र भी मात्र 9.25 वर्ष की। एक 9.25 वर्ष का अबोध बालक, मासूम बालक, बड़े भैया, दूसरे नंबर के बड़े भैया लगभग 11 वर्ष के और सबसे बड़े भैया लगभग 13 वर्ष के। पिताजी की इच्छा हुई मुझे दीक्षा लेनी है, तो इनकी माताजी ने कहा कि यदि आप संयम के मार्ग पर जाओगे तो मैं भी संसार में रहने वाली नहीं। आखिर तो मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, और पति को धर्म में जो जोड़े या पति के धर्म में जो साथ निभाए वही तो धर्म पत्नी। आज तक बहनों को शादी के बाद में धर्म पत्नी तो कहा जाता है, लेकिन भाइयों को आज तक धर्म पति नहीं कहा गया। यह विशेषण भाइयों को नहीं मिला, कारण कि बहनें धर्म करती हैं, धर्म में परिवार को जोड़ती हैं, सबको जोड़ती हैं। और पुरुषों को धर्म पति क्यों नहीं गया, केवल पति, क्योंकि हमने पति गयो, बदूज पति गयो। तो जब उन्होंने कहा कि यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी संसार में पीछे रहने वाली नहीं, मैं भी आपके साथ में, आपके मार्ग पर, मैं भी प्रभु के मार्ग पर चलूंगी। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, 9 साल, 11 साल, 13 साल। तब बच्चों को पता लगा कि हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा है दीक्षा लेने की, और फिर हमको संसार में रिश्तेदारों के पास में छोड़ करके जाए, मामा के पास कहीं और छोड़ के जाए, बुआ के पास, ना भाई ना, हमको पीछे नहीं रहना, हम भी पिताजी आपके साथ चलेंगे, माताजी आपके साथ चलेंगे। भयंकर विरोध हुआ बाल दीक्षा को लेकर के, और दिल्ली जैन संघ ने उस समय गुरुदेव समुद्र सूरी जी महाराज को इतना तक कह दिया कि यदि आपने इन बच्चों की दीक्षा करवाई तो हम विरोध करेंगे, काले झंडे लेकर के आएंगे, दीक्षा नहीं होने देंगे। लेकिन गुरुदेव समुद्र सूरी जी महाराज, गुरु वल्लभ के पट्टधर, शांत तपोमूर्ति, उन्होंने कहा कि मुझे इन बच्चों के अंदर में जैन शासन का भविष्य दिखाई देता है। ये बच्चे कोई सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि यदि इस परिवार को दीक्षा दी जाए तो इस परिवार से जैन शासन की अपूर्व प्रभावना होगी। तुम कितना भी विरोध करो, मैं इस परिवार को दीक्षा दे के रहूंगा। और गुरु समुद्र ने लाख विरोध होने के बावजूद भी दिल्ली से विहार करके उत्तर प्रदेश के बड़ौत गांव में गए और वहां पर जाकर के इनको दीक्षित किया। और वही परिवार जिन्होंने छोटी उम्र के अंदर में दीक्षा ली थी, बाल मुनि के रूप में दीक्षा ली थी, आज वो जैन शासन के सिरमौर बन करके, महाराजा बन करके आज सारे जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारा पुण्य है। अपनी दीक्षा भूमि पर जाने का सौभाग्य, और वहां पर 3 दिन का महोत्सव गुरुदेव की निश्रा में संपन्न हुआ, 23, 24, 25 नवंबर का। और वहां से गुरुदेव विहार करके मेरठ, और मेरठ से गुरुदेव ठेठ बरेली के पास में अहिछत्रा तीर्थ है, जहां पर पार्श्वनाथ दादा को कमठ ने उपसर्ग किया था, जल का उपसर्ग, और जहां पर परमात्मा के उपसर्ग का निवारण करने के लिए पद्मावती माता प्रकट हुई थी, उस भूमि के ऊपर तीर्थ की अंजनशिला का प्रतिष्ठा थी। 8 दिसंबर से लगा करके और 14 दिसंबर तक का महोत्सव था। वहां संपन्न करवा करके 14 को ही शाम को वहां से विहार किया, और वहां से 22 तारीख को हम आगरा पहुंचे। 22, 23 2 दिन आगरा, 22 को प्रवेश किया और 23 शाम को हम वहां से रवाना हो गए। 2 दिन के अंदर में सारे आगरा के कार्यक्रम निपटा करके 23 को वहां से रवाना हुए और 25 तारीख को भरतपुर पहुंचे, जहां हमारे त्रिस्तुतिक आचार्य श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज की जो जन्मभूमि है वहां पर पहुंचे। 30 तारीख को जयपुर के अंदर में पहुंचे। 12-1 बजे हमने जयपुर में प्रवेश किया और 3 बजे विहार किया। जयपुर संघ कहता है कि गुरुदेव ये जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये जैन नगरी है और आपका अनंत उपकार है। उस जयपुर के अंदर में आप इतनी जल्दी विहार कर देंगे? गुरुदेव ने कहा भैया अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे तो केवल कच्छ दिखाई देता है। जयपुर संघ को पार किया गुरुदेव ने, सामने अजमेर संघ खड़ा था। अजमेर संघ ने कहा गुरुदेव हमें आपका प्रवेश कराना, समैया करवाना। भैया हम विहार करते करते आएंगे, विहार करते करते हमारे को रिसीव कर लेना और आगे जाकर हमको एग्जिट कर देना, हमको छोड़ देना। वहां से हम अजमेर पहुंचे, अजमेर का प्रवेश करके उसी दिन वहां से रवाना हुए। आगे ब्यावर संघ खड़ा,
ब्यावर संघ ने भी हमको चलते रास्ते प्रवेश करवाया, प्रवचन हुआ, स्वामी वत्सल हुआ और शाम को विहार कर दिया। वहां से हम पाली पधारे, पाली से जेतपुरा पधारे, जेतपुरा से सिरोही पधारे, सिरोही से हम जीरावाला पधारे, जीरावाला से हम 15 तारीख को तो हम मंडार में, 15 तारीख को मंडार पहुंचे। संक्रांति का कार्यक्रम संपन्न हुआ, सुबह तो प्रवेश हुआ और संक्रांति के तुरंत बाद वहां से हमने विहार कर दिया। 16 किलोमीटर तो संक्रांति के बाद विहार किया और उसके बाद में हम वहां से विहार करके लगभग 18-19 तारीख को तो हम राधनपुर पहुंच गए और 18-19 को राधनपुर और आज 25 तारीख को आज आपके बीच भुज में है। जहां तक हमें यह दूरी लगती थी, हमें लगता था कि संभव नहीं, भुज हमें बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, एक बार हमें सीधा जाने दो। लेकिन ना जाने आपका क्या चमत्कार कि हमारे धीमे धीमे कदमों को भी आपने क्या स्पीड पकड़ाई कि हम 26 को हमारी जैसे तैसे गाड़ी जो पार्श्ववल्लभ पहुंचने वाली थी, लेकिन 25 को जो बाईपास होकर जाने वाली थी, आपने भुज प्रवेश करवा दिया। और आज आपका प्रवेश देख करके लगता कि ये हमारा 2 घंटे के लिए प्रवेश है, ये हमारा चुमासे का प्रवेश है। इतना उल्लास। और कभी नगर के अंदर में कोई गुरु भगवंतों का प्रवेश होता है, वरगोड़ा होता है, तो कोई अमुक गच्छ या संप्रदाय के गुरु भगवंत होते तो पूछते कि आज कौन से गुरु भगवंत, तो आज तपागच्छ के गुरु भगवंत पधारे हैं, आज उनका वरगोड़ा है। आज खरतरगंज संघ के गुरु भगवंत पधारे हैं, आज उनका वरगोड़ा है। आज अंचल गच्छ के पधारे हैं, आज इस गच्छ के पधारे हैं, आज स्थानकवासी परंपरा के पधारे हैं, आज इनका वरगोड़ा है। लेकिन आज कोई पूछे तो किसका वरगोड़ा? आज सारे जैन शासन का वरगोड़ा था। आज सकल जैन समाज का व्यक्ति बच्चा हर गच्छ हर संप्रदाय आज जिस भव्य भावना से आज इस प्रवेश के अंदर में शामिल हुआ है, सच में आज जो जैन एकता का रूप दिखाई दिया है, उसको देख करके लगता है कि गुरुदेव आपको जल्दी चुमासा कच्छ में करना ही चाहिए। इतना कम समय इस क्षेत्र के लिए अन्याय है। आपके साथ हूं मैं, लेकिन गुरुदेव के कार्यक्रमों को देखते हुए व्यवस्था है, लेकिन आपकी भक्ति का चमत्कार सच में मानना पड़ेगा कि हमने भी नहीं सोचा था कि आज 25 तारीख को हम प्रवेश करेंगे तो आज ही पद्मावती वाले आज ही वो भारत बंद का ऐलान करें। कमाल है, उन्होंने भी आज के दिन भारत बंद रखा, आपको डबल बेनिफिट हो गया। ये चमत्कार है भैया। और सारा जैन समाज, आप तो आने वाले भी नहीं थे, आज आपने किया उसके बाद हुआ, तो पद्मावती का भी बड़ा उपकार है। तो आज थोड़े समय के लिए भले गुरुदेव पधारे हैं, निश्चित आपका प्रेम आपका स्नेह जिस तरह से हनुमान के दिल के अंदर में राम और सीता हैं, ऐसे ही आपके हृदय के अंदर में परमात्मा और गुरु हैं। और जहाँ पर हृदय के अंदर में परमात्मा और गुरु होते हैं, फिर वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, फिर गुरु भगवंत और परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। देखिए हमारी माताएं बहनें, इनकी गाड़ी उपड़नी शुरू हो गई। मैं गुरुदेव से कहूँगा कि वह अपना प्रवचन कर, मुझे लगता है कि इनको विहार करना है। विहार तो वैसे हमको करना है, अभी तो हमको सामत्रा तक पहुँचना है। सामत्रा यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर सामत्रा है, और अभी गुरुदेव का एकाशना बाकी है, अभी तो पचखान भी नहीं पा रहा है। लेकिन केवल आपकी भावनाओं को देखकर हजारों किलोमीटर का विहार करके गुरुदेव यहाँ पधारे। किसके लिए पधारे? पारना महोत्सव के लिए पधारे। हमारे साध्वी जी भगवंतों ने जो घोर तपश्चर्या करके, घोर साधना करके जो उन्होंने तप की ज्योत प्रकट करी है, आज उनकी तप की शक्ति और आप सब भक्तों की भक्ति गुरुदेव को खींच करके यहाँ पर लेकर के आई है। यदि हम हजारों किलोमीटर चल करके हम कच्छ आ सकते हैं, तो क्या आप कच्छ और भुज के आसपास क्षेत्र वाले क्या पार्श्ववल्लभ नहीं आ सकते? और कल दिन भी वैसे आपने 26 जनवरी चुना, फिर छुट्टी का दिन चुन करके आपने रखे, और 26 जनवरी कल के दिन गुरुदेव का पार्श्ववल्लभ में प्रवेश है। और आप सभी को हमारी ओर से आमंत्रण है, कारण ये जो कार्यक्रम है ये हमारे घर का कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम है, हमारे साध्वी जी भगवंतों के पारने का आयोजन है। और आपको आमंत्रण देने के लिए स्वयं गच्छाधिपति गुरुदेव इसलिए भुज पधारे हैं।
सारे मार्कपट जैन संघ को, सारे आसपास के सभी गांवों को आज गुरुदेव की ओर से आमंत्रण है कि हमारे घर में होने वाले आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आप सबके नाश्ते की भोजन की व्यवस्था हमारे ट्रस्ट मंडल की ओर से है। लाभार्थी परिवारों ने जो लाभ लिया है, भव्य महोत्सव चल रहा है, भव्य पूजन अनुष्ठान चल रहे हैं और साध्वी जी भगवंत ने भी घोर तपश्चर्या करी है, किस तरह से कठोर आंबिल करे हैं और अब तो उनका गला भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इतना उल्लास, इतनी उमंग, इतनी तरंग, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ। यहाँ तक कि ट्रस्टियों ने कह दिया कि अरे मारे से मोटा साहब नहीं आपसे, अरे क्या दिल्ली ने क्या कच्छ केवी रीते आपसे। साध्वी जी एक જ વાત કહે છે, મને વિશ્વાસ છે મારા ગુરુદેવ પધારશે 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 અને આ સીત એ જે સબરીની ભાવના જેવું, દ્રૌપદીની ભાવના જેવું અને ચંદનબાલાની ભાવના જેવું આજે જેવી રીતે મહાવીર પધાર્યા એવી રીતે ગુરુદેવને આજે એમના પારના ઉપર પધારવો પડ્યો। बस हमारे हृदय में परमात्मा और गुरु इसी तरह बैठे रहें और यदि हमारे हृदय में परमात्मा और गुरु होंगे निश्चित हमारा कल्याण होगा होगा होगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आप गुरु का पल्लू पकड़ लो, परमात्मा मिलके रहेंगे। परमात्मा को पकड़ने जाओगे और गुरु नहीं होगा तो परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे, और एक बार परमात्मा नहीं भी होंगे और केवल गुरु को पकड़ लिया तो परमात्मा तो मिल ही जाने वाले हैं। परमात्मा तो तिन्नानम तार्यानम, स्वयं तीरते हैं, दूसरों को तिराते हैं और अपने तो डूबने जैसे। लेकिन यदि तिरना है तो गुरु का आलंबन हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। हमारी स्थिति लोहे के कील के जैसी है और कील को यदि पानी में डालो तो क्या होगा? डूब जाएगी। तिरेगी कि डूबेगी? डूब जाएगी। और यदि लकड़ी को पानी में डालो तो तिरेगी। गुरु भगवंत लकड़ी के पाट के जैसे हैं, वो तिरने वाले हैं, और हम लोहे के कील के जैसे हैं, हम डूबने वाले हैं। और यदि हमें तिरना है तो हमें क्या करना होगा? लकड़ी के साथ जुड़ जाना होगा। और जैसे ही लकड़ी के साथ जुड़े तो लकड़ी तो तिरेगी, हम कील जैसे भी तिर जाएंगे। बस ये गुरुदेव पधारे हैं, इनका पल्लू पकड़ करके हम भी तिर जाएं। और ये माघपट का क्षेत्र, यहाँ के हृदय के अंदर में गुरु बैठे हैं, गुरु वल्लभ बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, शासन देव बैठे हैं। यहाँ की जाहो जलाली, यहाँ की धर्म प्रभावना अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में अभी आपके पास में हम लोग 25 तारीख से लगा करके और 12 फरवरी तक हम आपके प्रदेश में हैं। यहाँ से अभी हमारी एंट्री हुई और अभी हमारी थोड़ी समय में एग्जिट होगी। यहाँ से विहार करके मानकुआं होते हुए और सुख पर दर्शन करते हुए मानकुआं से गुरुदेव आगे सामत्रा पधारेंगे। रात्रि विश्राम सामत्रा करके और कल सुबह 9:30 बजे गुरुदेव का पार्श्व वल्लभ के अंदर में मंगल प्रवेश होगा। और 28 तारीख को साध्वी जी भगवंतों के पारने हैं। 27 तारीख को मंजिल गांव के अंदर में उपाश्रय का उद्घाटन, बिल्कुल, और मंदिर जी की ध्वजा का कार्यक्रम, उसमें भी सभी को आमंत्रण है। 28 तारीख को पारने संपन्न होंगे। उसके बाद में मानकुआं गांव की अंजनशला का प्रतिष्ठा, वह 3 फरवरी से लगा करके 8 फरवरी तक भव्य रूप से वहां पर संपन्न होगी। 7 तारीख की प्रतिष्ठा संपन्न करके 8 तारीख को गुरुदेव वहां से विहार करेंगे। और 9 तारीख को सिटी स्क्वायर के अंदर में जो वल्लभ सूरी जी महाराज साहब का गुरु मंदिर निर्माण हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा 9 फरवरी को गुरुदेव के कर कमलों से सिटी स्क्वायर के अंदर में संपन्न होगी। और वहां से गुरुदेव विहार करके और 12 तारीख को गांधी धाम में प्रवेश करेंगे। और वहां पर संक्रांति महामांगलिक का कार्यक्रम गांधी धाम में होगा, जहां पर देश भर से गुरु भक्त महामांगलिक सुनने के लिए गांधी धाम पधारेंगे। और वहां से विहार करके 12 तारीख को विहार करके गुरुदेव वहां से लंबे लंबे विहार करते हुए और 2 मार्च को गुरुदेव को जोधपुर पहुंचना है। और ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है और 2 तारीख को हमें पहुंचना है। और कुदरती ये महीना 28 का आ गया। 2 दिन ऊपर वाले ने और काट लिए। तो 2 तारीख को वहां पर प्रवेश करना है। 4 तारीख को वहां पर धर्मनाथ दादा के जिनालय की प्रतिष्ठा संपन्न करवानी है। 4 तारीख को वहां से विहार करके 6 तारीख को पिपाड़ गांव में जिन मंदिर के
जो शिलान्यास आदि के चढ़ावे संपन्न होने हैं, वह चढ़ावों की जाजम करा करके और वहाँ से गुरुदेव को 9 तारीख तक नागौर पहुँचना है। नागौर कार्यक्रम संपन्न करवा के गुरुदेव को 13 तारीख तक बीकानेर पहुँचना है और 14 तारीख की संक्रांति महामांगलिक बीकानेर में संपन्न करवानी है और वहाँ पर उपाश्रय का उद्घाटन और शांति गुरुदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा इत्यादि कार्यक्रम संपन्न करके 14 को ही लगभग वहाँ से विहार करके और अप्रैल 1 वीक में तो वापस दिल्ली पहुँचना है। और दिल्ली में पहुंचने के बाद में वहां से गुरुदेव की दीक्षा भूमि बड़ौद से छरी पालित यात्रा संघ हस्तिनापुर तीर्थ का है। हमारे 12 कल्याणकों की भूमि हस्तिनापुर है। 8 तारीख से 8 अप्रैल से छरी पालित संघ का प्रयाण निर्धारित है और 14 अप्रैल को हस्तिनापुर में प्रवेश निर्धारित है। 14 अप्रैल को वहां पर संक्रांति का कार्यक्रम होगा, संगमाला होगी और 18 अप्रैल को हमारे समुदाय के समुदाय वडिल तप चक्रवर्ती आचार्य भगवान वसंत सूरी जी महाराज, जो कि प्रतिष्ठा के समय यहाँ पधारे थे और 1 वर्षी तप का पारना उनका पार्श्व वल्लभ में हुआ था, इस वर्ष उनके 50वें वर्षी तप का पारना है। अखंड 50 वर्षों से वर्षी तप करने वाले घोर तपस्वी वसंत सूरी जी महाराज के 50 वर्षी तप के पारने पर हमें पहुंचना है। जब हम दिल्ली से रवाना हुए, हमने कहा गुरुदेव कच्छ जा रहे हैं, आशीर्वाद दो, साध्वी जी भगवंतों का पारना करवाना है। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा नित्यानंद, मुझे वचन दे कि मेरे पारने में भी तू मेरे साथ रहेगा। आज वो हमारे समुदाय वडिल हैं, वे वृद्ध हैं, 85 साल की उम्र है। उनकी एक ही भावना है कि मेरे जीवन का ये 50वां साल है वर्षी तप का और मेरे पारने में तुझे रहना है। गुरुदेव ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो, कच्छ जाकर के मैं आपके पारने पर पहुंच जाऊं। और बस हमें 18 अप्रैल को उनका पारना संपन्न करवाना है और वो पारना संपन्न करवा के वहां से तुरंत विहार करना है और 24 अप्रैल को हमें हरिद्वार पहुंचना है। आप तो पता नहीं कब हरिद्वार पहुंचोगे, हम तो 24 को हरिद्वार पहुंचेंगे। 24 को हरिद्वार में गुरुदेव पहुंचेंगे और 25 अप्रैल को हरिद्वार में गुरु आत्माराम जी महाराज के गुरु मंदिर का निर्माण हुआ है, क्योंकि आत्माराम जी का काल धर्म पाकिस्तान में गुजरानवाला में हुआ था। पाकिस्तान विभाजन के समय वह समाधि वहीं पर रह गई। अब भारत के अंदर में हमारे पास में गुरुदेव की समाधि नहीं, तो जो समाधि वहाँ है हूबहू वही के वही स्ट्रक्चर, वही स्वरूप वह हरिद्वार के अंदर में निर्मित हुआ है। उसकी प्रतिष्ठा 25 अप्रैल को संपन्न करवानी और वह संपन्न करवा करके उसके बाद में गुरुदेव को गुरु भूमि पंजाब की ओर जाना है। उसके बाद में मई, जून, जुलाई लगभग 3 महीना हमें पंजाब में विचरण करना है और जुलाई एंड के अंदर में इस बार चातुर्मास बैठता है और इस बार तो ऊपर वाला देता छप्पड़ फाड़ के 1 महीना और बढ़ा दिया। जेठ महीने 2 हैं, 1 महीना विहार का हमारा और बढ़ गया। हर साल तो हम लगभग 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन इस बार हमारा विहार 5000 किलोमीटर से अधिक होगा। लेकिन केवल गुरुदेव की एक ही भावना, संघ शासन के काम हो, जहाँ पर भक्ति की भावना, जहाँ पर भक्तों का उल्लास हो, वहाँ पर मैं पहुँच करके सबकी भावना को पूरा करूँ। केवल इसी आशय से गुरुदेव विहार करते रहे हैं। लगभग आप तक पहुँचने के लिए हमने 8-8 घंटे सड़क पर चले हैं। सुबह 7 से शाम को 6:30-7 बजे तक, तब कहीं दिन में 3 टाइम विहार। सुबह चलते 10-12 किलोमीटर, रास्ते में कहीं पर भी सड़क के साइड में कहीं पर भी नवकारसी कर लिया। फिर 10-12 किलोमीटर चले, 12-1 बजे दूसरे पड़ाव पर पहुंचे, वहां पर दोपहर का एकाशना कर लिया। फिर दोपहर को वहां से 3:30-4 बजे निकले और 6-6:30 बजे तक तीसरे पड़ाव पर पहुंचे, रात्रि संथारा कर लिया। फिर सुबह उठे, कहाँ जाना है? कच्छ, ओम कच्छाय नमः, ओम भुजाय नमः, ओम पार्श्ववल्लभाय नमः, और आयनम करते आ गए हैं। बस परमात्मा की कृपा बनी रहे। आप सबको देख करके हमारी सारी तन की मन की थकान हमारी आज उतर गई। और आज जो चौक का उद्घाटन किया है, आज गुरुदेव के आगमन के ऊपर में 11 वर्ष पहले जो गुरुदेव ने वास्तक्षेप डाला था, जो एक भावना व्यक्त करी थी, आज 11 साल के बाद में पुनः आज भुज के अंदर में जैनाचार्य विजय वल्लभ चौक का निर्माण करवा करके आपने गुरु वल्लभ की एक सच्ची श्रद्धांजलि आज गुरुदेव को समर्पित करी। आज गुरु चरणों को जो भेंट आपने अर्पित करी, इस कारण से आपका बहुत बहुत आभार। जिन्होंने निर्माण करवाया चौक का, उनका भी आभार। और जिस व्यक्तित्व ने इस चौक के निर्माण के लिए हर तरह से मेहनत करी, पुरुषार्थ किया और इसके लिए जो भी कार्य करने थे सारे किए, उन सभी कार्यकर्ताओं को, गुरु भक्तों को हम आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ से भी अभी एक और चौक के लिए गुरुदेव को जो है वो आगे बढ़ना है। और भी गुरुदेव के कई काम हैं।
इसी के बीच में हमारे बुजोड़ी संघ ने भी भावना व्यक्त करी है कि गुरुदेव हमको भी कुछ देहरियों का निर्माण करवाना है, इसलिए वापसी के समय में हमारे यहाँ पर भी आपको पधार के वो काम शुरू करवाना है। एक घटना और बताऊं कि हम लोग विहार करके जब हमें आना था तो चांद्रानी के पास में हमको व्यवस्था चाहिए थी कि चांद्रानी से आगे चाहिए, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और धनेटी बहुत आगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते के अंदर हमारे से कुछ नहीं मिलता, रास्ते में कोई स्थान नहीं है। हमने कहा भैया कुछ तो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। चंद्राणी तक हमारा व्यवहार बहुत कम हो जाएगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर माधापुर संघ वाले आए और एक पेट्रोल पंप के यहाँ गए और उसके मालिक को बोला कि हमारे गुरु भगवंत को यहाँ पधारना है, रात्रि स्थिरता करनी है। उस व्यक्ति ने बोला कि ये आपके कारण से गुरु भगवंत मेरे यहाँ नहीं पधार रहे, ये 2 साल से मैं भावना भारा था उस कारण से पधार रहे हैं। वो धनजी भाई एसआर पेट्रोल पंप, और 2 साल से उसने पेट्रोल पंप बनाया, 6 साल से उसके जीवन के अंदर में जो सुख खिले हैं, सुख आया है, आज भगवान की कृपा से सब कुछ है उसके पास में। कहता 2 साल से मैं देखता गुरु भगवंत आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कब पधारेंगे। मैं रोज भावना बाता, कभी मेरे यहाँ भी संत पधारे, कभी मेरे यहाँ भी संत पधारे, और ना जाने उसकी भावना खींच लाई और हमारा वहाँ पर रात को स्टे हुआ। वो 1 घंटा गुरुदेव के पास में बैठा, इतना भावों से भरा हुआ था, इतना भाव से भरा हुआ था। गुरुदेव आज मेरी भावना फलीभूत होगी, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज संत मेरे यहाँ पधारे, आज सत्संग का मुझे लाभ मिला। और जब उसने कहा गुरुदेव आप यहाँ पधारे, अब मैं चाहता हूं गुरुदेव आपके चरण यहाँ पड़े हैं और आप यहाँ पर मेरी भूमि के ऊपर वास्तक्षेप करो, आने वाले समय में मैं यहाँ पर एक विहार धाम बना दूं। और गुरुदेव ने उसकी भूमि के ऊपर में वास्तक्षेप किया। उसने कहा गुरुदेव मेरे पूरे पेट्रोल पंप है, यहाँ पर देखो सब जगह मैंने झाड़ लगा रखे हैं, लेकिन ये इतनी जगह मैंने खाली छोड़ रखी है कि यहाँ पर कभी मौका आएगा तो मैं संतों के ठहरने के लिए यहाँ पर कमरे बना दूंगा। गुरुदेव वास्तक्षेप कीजिए। और गुरुदेव ने वास्तक्षेप किया और उसने गुरुदेव मुझे इसका नामकरण रखना है। और गुरुदेव ने कहा भैया और तो कुछ नहीं, इसका नाम होगा विजय वल्लभ कृष्णा विहार धाम। और वह विजय वल्लभ के नाम से वहां पर वास्तक्षेप करके आए और वह गुरु भक्त, एक सच्चा भक्त वहां पर अब विहार धाम का निर्माण करेगा। ऐसे ऐसे रास्ते के अंदर में जो हमको जो भाग्यवान मिलते हैं, ये सभी ऐसे हृदय की सच्ची जो श्रद्धा है वो हमें निश्चित खींच करके लाती है। बस ऐसा प्रेम, ऐसा उल्लास, ऐसी भक्ति आपकी बनी रहे तो हम बार बार यहाँ पर आते रहें। अभी तो थोड़े दिन के लिए आए हैं, लेकिन गुरुदेव अगली बार थोड़ा सा समय और ज़्यादा लेकर के आए। जैसे कि आप सबको यहाँ पर विनंती भी करी है, अब गुरुदेव से कहूँगा कि अपने मंगल आशीर्वाद सकल संघ को प्रदान करें, क्योंकि ज़्यादा समय लगाएंगे तो फिर लगने लगेगी थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी ज़्यादा टाइम होता है तो फिर पेट में लगने लगता है, तो फिर बैठना मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि गुरुदेव अब अपनी मांगलिक उद्बोधन, अपना आशीर्वचन यहाँ पर प्रदान करें और आगे के सभी कार्यक्रमों में जैसी आज आपकी उपस्थिति थी वैसे प्रतिदिन आपकी उपस्थिति मिलती रहे। इतने सारे चेहरे ये सारे हमारे कैमरे के अंदर कैद हो गए हैं, अब रोज चेक करेंगे कौन आया कौन नहीं आया, रोज आपकी हाजिरी लगेगी। अवश्य ही आपकी गुरु भक्ति की हार्दिक अनुमोदना। पूज्य गुरुदेव। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च
ऋषभ स्वामिनं स्तुमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। मुनिश्री ने काफ़ी कुछ आपको सब बता ही दिया है, समय भी काफ़ी हो गया है, फिर भी संक्षिप्त में अपने भावों को अभिव्यक्ति दूंगा। परम श्रद्धेय पंजाब के श्री गुरु वल्लभ अपने प्रवचनों में अक्सर कहा करते थे कि परमात्मा और महात्मा तुम्हारी भाषा को नहीं, तुम्हारे हृदय सागर में उठने वाली भावों की तरंगों को देखते हैं। परमात्मा और महात्मा तुम्हारी संपत्ति की ओर लक्ष्य नहीं देते, वे तो तुम्हारी श्रद्धा को देखते हैं। परमात्मा और महात्मा तुम्हारे द्वारा की जाने वाली औपचारिकताओं की ओर लक्ष्य नहीं देते, वे तो तुम्हारे मन मंदिर के नीचे रहे आस्था के आधार को देखते हैं। साचू कहूं, आज અમે કચ્છ આવ્યા છીએ, અમારી ઘણી બધી વ્યસ્તતાઓ હતી, પણ આ તમારી ભુજની ભક્તિ, તમારા માતપટની ભક્તિ, તમારા કચ્છની ભક્તિના લીધે અમે નથી આયા, તમારી ભક્તિની શક્તિ અમને ખેંચીને અહીં લાવી છે। આજે સાચું કહું, અમારે લાંબા લાંબા વિહારોની બધી થકાન આજે આપની ભક્તિના દર્શન કરીને અમે થકાન દૂર થઈ ગઈ છે। ને હવે આપની ભક્તિને જોઈને સાચે આજે મારા મનમાં એવું ખરેખર આવી ગયું છે કે 3 વાર તો તમારી વિનંતીથી આયા, હવે ચોથી વાર તમારે વિનંતી ન કરવી પડે, હવે હું સામેથી કહીશ કે હું આવી રહ્યો છું અને પેલો ભક્ત કહે છે કે ભક્તિ કરતો એસી કરજો ગુરુ को रिझाए, भक्ति कर तो ऐसी कर जो गुरु को रिझाए, तू क्या गुरु से मिलने जाए, गुरु चलकर तुझे मिलने आए। सचमुच में आज आपकी जो भक्ति मैंने देखी है, साचे कहूं તમે જ્યાં પણ જઈએ અમે પંજાબની ભક્તિના વખાણ કરીએ, પણ આજે પંજાબની ભક્તિને પણ ભૂલી ગયો, આવી તમારી ભક્તિ જોઈને। આ ધરતી કચ્છની ધરતી, દાનવીર જગડુ શાહની ધરતી, વર્ષો વર્ષોના દુષ્કાળ તેને દૂર કર્યા નામ વગર। આ ધરતી વિજય શેઠાણાની ધરતી, आखिर कुछ वापिस आना तो कच्छ आना तो सीखना तो पड़ेगा ना गुजराती में। कच्छ की धरती को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सचमुच में मैं 29 साल पहले भी आया था और अभी 11 वर्ष पहले पार्श्व वल्लभ धाम की प्रतिष्ठा करवाने भी आया था, आज तीसरी बार आना हुआ है। तीनों बार मैं कच्छ की स्थिति को देख रहा हूं।
लेकिन इस बार मैंने जो कच्छ की स्थिति को देखा, जो मैंने गांवों की स्थिति को देखा, इतना परिवर्तन, कच्छ एकदम बदल गया, नया हो गया। पहले भी मैंने जिन मंदिरों के दर्शन किए थे, वापिस मैंने दर्शन किए, उस समय जो जिन मंदिरों की स्थिति थी उससे भी आज नए मंदिरों का निर्माण, भूकंप के बाद में। क्या आपकी उदारता, क्या आपकी परमात्मा भक्ति है। सच बात है, मंदिर वही बना सकता है जिसका मन मंदिर हो। मंदिर वही बना सकता है जिसका मन मंदिर हो, और मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा वही करा सकता है जिसकी आत्मा में परमात्मा तत्व की प्रतिष्ठा हो। खरेखर कच्छना लोगों तुमने धन्य छे, तुम्हारी परमात्मा भक्ति ने धन्य छे। चाहे भूकंप के कारण कितने ही मंदिरों का नष्ट हो गए, मूर्तियों पर भांगी गई, लेकिन आज पहले जैसे मंदिर थे उससे भी अधिक, उससे भी अच्छे जिन मंदिरों का निर्माण, उससे भी अधिक कलात्मक, भव्याति भव्य, गगनचुंबी, शिखरबद्ध जिन मंदिरों का निर्माण कराया जो आपने, धन्य आपकी परमात्मा भक्ति को नमन करता हूं, आपकी गुरु भक्ति को नमन करता हूं, आपकी जीवदया की भावना को नमन करता हूं। अपनी संतानों से भी बढ़कर जिस तरह से आप जीवों की सुरक्षा करते हो, जीवों की सेवा करते हो, जीवदया का पालन करते हो, धन्य आपकी भक्ति को। जब भी आता हूं रिटर्न टिकट लेकर के आता हूं। दिल्ली से आया, वापस दिल्ली मुझे जाना है। यह तो केवल आपकी चुंबकीय शक्ति है, भक्ति की चुंबकीय शक्ति। और हमारे जिनको हम शासन की ज्योति कहते हैं, हम वल्लभ ज्योति कहते हैं, ऐसे साध्वी ज्योति प्रज्ञा श्री जी महाराज और साध्वी जिन प्रज्ञा श्री जी महाराज, सो वर्धमान तप की ओली, धन्य छे उनकी तपस्या, धन्य उनकी तपस्या। और जिसमें ज्योति प्रज्ञा श्री जी महाराज 99 ओली के बाद वापिस कब गुरु महाराज पधारेंगे 100वीं ओली के पारने के ऊपर, हमने डेट नहीं दी, उन्होंने 68 नवकार मंत्र का तप चालू कर दिया। नवकार मंत्र तप 68 उपवास एकांतरे करया, और जैसे हमने डेट दी कि हम इस डेट को पहुंचेंगे, उन्होंने 100वीं ओली चालू कर दी। और 100वीं ओली में भी केवल 2 द्रव्य लेते, 2 द्रव्य, फक्त 2 द्रव्यो, केवल गेहूंनी थूली અને મગ, 2 દ્રવ્યો લે છે। साध्वी जिन प्रज्ञाश्री जी महाराज फक्त 4 જ द्रव्य ले छे 100वीं ओली में। और उनके इस तप के यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर साध्वी हित प्रज्ञाश्री जी महाराज पण एक साथ सળંગ 3 ओली करीने ए पण 108 आंबिल करीने पारनु करवाना छे। साध्वी हित प्रज्ञाश्री जी महाराज पण 2 ओली पूरी करीने 103 आंबिल साथे पूરું કરી પારનું કરવાના છે। साध्वी कैवल्य प्रभा श्री जी महाराज 1 महीना एकांतरे અપવાસ ને પારને એકાશનું, અપવાસ ને પારને એકાશનું કરીને એ પણ સાથે પારનું કરવાના છે। ધન્ય છે બધા તપસ્વીઓને। આ તપની શક્તિ અને આપની ભક્તિની શક્તિ અમને અહીંયા ખેંચીને લાવી છે। 100મી વર્ધમાન તપની ઓલી વિચાર તો કરો કેટલા આંબિલ હોય, 5050 આંબિલ, 1 થી લઈને ક્રમશઃ 100 સુધી, અને છેલ્લે એક ઉપવાસ, ઉપવાસ પર પારનો 5050 આંબિલ 100 ઓલી થાય, 100 ઓલી થાય, અને 100 ઉપવાસ એટલે 5150 દિવસનો महातप वर्धमान तप। आज हमारे शासन में कहा जाता है कि स्थूली भद्रनु नाम 84-24 સુધી ગવાશે, 84-24 સુધી। પણ એથી પણ આગળ શ્રીચંદ્ર કેવલી થયા। શ્રીચંદ્ર કેવલી આપણા ઇતિહાસમાં અમર નામ છે શ્રીચંદ્ર કેવલીનું। એમને સળંગ સોલી કરી, સળંગ વર્ધમાન તપની સોલી સળંગ કરી, સળંગ એટલો ઉત્કૃષ્ટ તપારાધના કરી કે જેના કારણે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓ કહે છે કે એમનું નામ 824 સુધી ગવાશે, કેવલ વર્ધમાન તપની ઓલી એક સાથે સળંગ કરી એના લીધે। કેટલું મહાન તપ છે। સનત કુમાર ચક્રવર્તીએ પૂર્વ ભાવમાં 100 વર્ધમાન તપની ઓલી કરી હતી એટલે ચક્રવર્તી બન્યા। આવો મહાન તપ સાધ્વીજી ભગવંતે બે સાધ્વીજી મહારાજ જ્યોતિ પ્રજ્ઞાસિંહ, જીન પ્રજ્ઞાસિંહ મહારાજ પૂર્ણ કર્યું છે। અને એમના
પારણાના અવસરે એમની અનુમોદના કરવા માટે અમે પાછા કચ્છ આવ્યા છીએ. સાથે સાથે मानकुआમાં 135 वर्ष प्राचीन जिस गांव में, जिस संघ में अगर मंदिर को 100 वर्ष हो जाते हैं प्रतिष्ठा को, तो वो मंदिर तीर्थ बन जाता है. 135 वर्ष जूनू मानकुआમાં सुपासना दादानु देरासर और उसका आमूल चूल भव्याति भव्य जिन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उसका शिखरबद्ध निर्माण हुआ है और उसकी भव्याति भव्य अंजन शिला का प्रतिष्ठा संपन्न कराने के लिए 7 फरवरी को इसकी अंजन शिला का प्रतिष्ठा का महान आयोजन संपन्न होगा. इन सभी आयोजनों में सभी कार्यक्रम महाराज जी ने बता दिए हैं डेट वाइज, चाहे वो पार्श्व वल्लभ इंद्रधाम के साध्वी जी महाराज के पालना निमित्त महोत्सव या पालने का प्रसंग, चाहे मंजल का कार्यक्रम. મંજલમાં અમારા પહેલાં નવીનભાઈ લાલન અને ધીરેનભાઈ લાલન આવા સમર્પિત ગુરુભક્ત છે, જ્યારે પણ અવાજ આપે ને અડધી રાતે રવાના થઈ જાય. ફેર ક્યાં ક્યાં સુધી બસો લઈ લઈને અમારી પાસે આવ્યા. ખરેખર એમની ભક્તિની ખૂબ અનુમોદના કરીએ. આજે ચોક પણ બન્યો છે ને બીજા ચોકનો પણ જે મંજૂરી લઈ આવ્યા છે એ બધું નવીનભાઈ લાલન અને ધીરેનભાઈને આભારી છે. ધન્ય છે આવા ગુરુભક્તોની, એમની ગુરુભક્તિની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ. આજે એવો સરસ વિજય વલ્લભ ચોકનું નિર્માણ થયો. ધન્ય છે ત્રણે પુણ્યશાલી ભાગ્યશાલીઓ આદર્શ ગુરુ ભક્તો. આપણા પ્રેમચંદ લક્ષ્મીચંદ સંઘવી પરિવાર, અમારા કમલેશભાઈ સંઘવીનું પરિવાર, બીજું અમારા અભય કલરલેવાલા પ્રકાશભાઈ કેશવલાલ ગાંધી પરિવાર અને ત્રીજું અમારું બુલબુલવાલો પરિવાર પ્રવીણભાઈ કરમચંદ શાહનો પરિવાર. ત્રણેય પુણ્યશાલી ભાગ્યશાલીઓએ આવી ધર્મનગરીમાં અને એવું સરસ ચોક બનાવ્યું અને એમાં કેવો સિમ્બોલ રાખ્યો, હાથ જોડેલા વિનમ્રતાનું પ્રતીક, નમસ્કારનું પ્રતીક. આપણે નવકારનું હાર્દ છે નમસ્કાર. कारण एक बार मेरे मन में संशय पैदा हुआ. मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरुदेव, जिन शासन के रंग में रंगी किसी भी श्राविका की कोख से बालक जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले माँ नवकार मंत्र सिखाती है, नमो अरिहंतानम. गुरुदेव, अगर नमो अरिहंतानम नहीं कह करके अगर अरिहंतानम नमो कहा जाए तो क्या दिक्कत है? उस बालक के मुख से सबसे पहले अरिहंत का नाम निकले और अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है. चाहे नमो अरिहंतानम बोलो, चाहे अरिहंतानम न बोलो, क्या फर्क पड़ता है? नमो अरिहंतानम नहीं कहकर अरिहंतानम नमो, सिद्धानम नमो, आयर्यानम नमो, वज्झायानम नमो, सब साहुनम नमो कहा जाए तो क्या दिक्कत है? गुरुदेव बोले नहीं, जब तक नमेंगे नहीं तब तक अरिहंत मरसे नहीं. अहम जाएगा, अहम मिटेगा तो अरहम मिलेगा. सबसे पहले नमन, नमस्कार, विनम्रता, उसके बाद ही परमात्मा के तत्व की प्राप्ति हो सकती है. आज मुझे बहुत प्रसन्नता, इतना सुंदर सिंबल बनाया है नमस्कार करते हुए हाथ का. बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही पुण्यशाली भाग्यशालियों को इतना अद्भुत निर्माण के लिए, एक आदर्श गुरु भक्ति के लिए बहुत बहुत तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ. और आज के संपूर्ण आयोजन को इतने शॉर्ट पीरियड में, हमारी तो भुज से बाहर निकलने की भावना थी, समय बहुत कम था, इतने लंबे लंबे विहार थे. प्रतिदिन शायद ये मुझे दीक्षा का 51वां वर्ष चल रहा है. वैसे तो लंबे लंबे विहार हमेशा जिंदगी भर मैंने किए हैं, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर विहार आज तक कर चुका हूँ. लेकिन उसमें भी इस वर्ष ये इतने शॉर्ट पीरियड में मैंने जो विहार किए हैं, शायद मैंने 51 वर्ष के संयमी जीवन में नहीं किए. प्रतिदिन 35, 40, 45 किलोमीटर तक के विहार, 48 किलोमीटर तक के 3 समय विहार, सुबह दोपहर शाम 3 समय विहार. लेकिन आज सच कहता हूँ कि मेरी सारी लंबे विहारों की थकान आज आपकी भक्ति को देख करके, आपकी भावना को देख करके, ऐसा समय हम तो केवल 2 घंटे के लिए आए, कोई चौमासे का प्रवेश हो ऐसा, आज तो ऐसा लगा जैसे चौमासा का प्रवेश हुआ. अनिश्चित मैं कहता हूँ, जब भी अनुकूलता होगी अब आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, सामने चला करके कहूँगा मैं आ रहा हूँ, चौमासा में भूज करूँगा.
समय काफ़ी हो गया है और हमें अभी यहाँ से दूसरा जो चौक बनने जा रहा है, जहाँ पर हमारे एयरपोर्ट के पास में, वहाँ पर भी जाके वहाँ सक्सेप डालना है और वहाँ से हमें आगे मानकुआ सुख पर होते हुए मानकुआ भी जाना है। मानकुआ से आगे हमें शाम तक सामत्रा पहुँचना है। सारे कार्यक्रम निश्चित हैं। आप सबकी इसी तरह से देवगुरु धर्म के प्रति निष्ठा और बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आयोजनों में, चाहे पार्श्व वल्लभ इंद्र धाम साध्वी जी महाराज के पालने के प्रसंग पर, सभी प्रसंगों पर, मानकुआ प्रतिष्ठा के पर, सभी आयोजनों में आप सकल संग आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद मांग